So we derived Gauss equations, Gauss formula, the last class, by using Gauss equation and Kodazi equations. We just derived this Gauss formula. So we just compared the coefficients of Rijk and Rjik, and we got this formula. Rijk, इसको हमने कंपेयर किया था Rjik, Rikj, Ijk and Ikj, Ikj. So we got one Kodazi equation and Gauss equation. So Kodazi equation was coming del of Bij upon del of Uk plus B of Lk. Just oversimple this as Ijl is equal to del of Bik over del of Uj plus B of Li Ikl. It was your Kodazi equation. Kodazi equation. And I told you when you will be putting Ijk L12, so you will be getting only two equations which will be independent. And then we got Gauss formula. Gauss formula. It was coming B11 B22 minus B12 square, and intentionally I put Ij1 Ks2, so it will become this. It was coming, it will become del 2 G12 upon del U1 del U2 minus half del 2G11 over del U2 whole square minus half del 2G22 over del U1 whole square. This is one term, and minus G of Lm 1 L 2 M minus 1 L 1 M. This is the formula, Gauss formula. ये formula आपका Gauss formula. Then we have Gauss theorem. Gauss theorem. Gauss theorem actually, which we have proved this Gauss formula, it is the Gauss theorem. What it says? It states the Gaussian curvature के Gaussian curvature को कैसे नोट करते हैं? You are having a Gaussian map from some surface to a unit sphere, then we take this K as a Gaussian curvature. This depends only on the coefficients of the first fundamental form and their derivatives. Of different coefficients of the first fundamental form and their derivatives of first and second order. क्या कहती है Gauss theorem? Gaussian curvature K जो है, it will be depending only on the coefficients of the first fundamental form and their derivatives of first and second order.
तो दिस प्रूफ इज सिंपल। तो अभी हमने पीछे प्रूफ क्या करा है, तो के इज हाउ मच, गॉसियन कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था याद है, डी अपॉन जी, इट वाज योर के, हमने डिराइव कर फॉर्मूला निकाला था, के इज बी अपॉन जी, इट इज गॉसियन कर्वेचर, सो इट विल बी हाउ मच 1 अपॉन जी, और बी की वैल्यू क्या है, बी इज दिस, ये जो हमने निकाला है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बी, है ना, b11 b22 minus b12 square, so b upon g means what, 1 upon g into this, del 2g 1 2 over del u1 del u2 minus half del 2g11 over del u2 whole square minus half del 2g u2 over del u1 whole square, 1 upon g इनफैक्ट सब पूरे इसके ब्रैकेट के बाहर है, तो this first term minus एक काम हो इसे ऐसे ब्रैकेट में and minus g of lm 1 1 l 2 2 m minus 1 2 l 1 2 m, like this. So here you can see if this curvature is depending on coefficients of first fundamental form, ये जो g आपका आ रहा है ये coefficient आएंगे इसमें, g क्या होता है, g is what, g11 g22 minus g12 square and its first and second order derivatives, ये सब क्या है आपके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको हम फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव के टर्म्स आएंगे क्रिस्टोफर सिंबल। So this is just the theorem which we have proved Gauss formula, ये थ्योरम करेंगे, बताइए भाई। यस सर। ठीक है, ये गॉस थ्योरम कहती है आपकी। Next we have some problems using this formula. The first problem है आपका example 1, show that k is equal to Gaussian curvature is equal to 1 upon g del of 1 1 l upon del u2 minus del 1 2 l upon del u1 plus 1 1 m m2 l minus 1 2 m m1 l and this whole and outside gl2, the bracket is close and this gl gfl2, एक शो करना है हमें कि दिस k is 1 by g, so how you will show it, यहाँ पे I will be using the formula, क्या बच्चों क्या आ रहा है भाई, अटेंडेंस क्लास के बाद भेजिएगा जब एंड हो रही हो, अभी कोई अटेंडेंस में कंसीडर नहीं करूंगा। gl2, तो इसका सॉल्यूशन, here you will be using left hand side of it is in 1, अब ये स्टार जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस लेक्चर जो था आपका लास्ट क्लास में लिया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन एक स्टार लिखी थी, ठीक, क्वेश्चन को स्टार लिखा था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे जहाँ पे गॉस इक्वेशन स्टार्ट करी थी,
that was this GLS del of IJL upon del of UK plus IJM MKS minus BIJ PKS. It is your left hand side of this star. Previous lecture में आप जाएंगे वहां दिखेगा in one. So when you will take it, then you will be getting this term. So we get ये hint दे रहा हूँ इसका मैं आपको. You will be getting this Bij PKS minus PIK PJS. Same terms आएंगे. So it will be giving you this CLS del of IJL over del of UK minus del of IKL over del of UJ minus CLS IJM MKL minus IKM MJL ये आएगा. यहाँ पर यू विल पुटिंग हमें वन ये चाहिए, इसके लिए IJ 1 रख दी और K और S को 2 रख दीजिएगा, तो ये आपको ये मिल जाएगा. We get the desired result. Second problem, show that A is equal to R11, R1, R2 product with R22, R1, R2 minus R12, R1, R2 whole square. This bracket is what? This is a triple product of vectors. So that K is given by this upon G square. K is B upon G. ये फॉर्मूला K का हमें दिखाना है कि Gaussian curvature can be given by this. So we know that K is B upon G. And B is what? B is B11 B22 minus B12 square upon G. G की वैल्यू नहीं रख रहा क्योंकि हमें प्रूफ के अंदर G चाहिए, but I don't need B in the proof. So I will take the value of B, not of G. G as it is. Now B11 B22 you can find by this formula. Bij is how much? Rij dot n. This is the formula for Bij. And what is n? N is, you know, n क्या था याद है किसी को? What is this principal normal n? क्यों भाई, किसी को भी पता है n? Out of 55 candidates. नहीं पता. क्विज में कैसे करोगे? देख के लिखोगे बस क्विज में. The normal curvature vector. फॉर्मूला क्या है इसका? प्रिंसिपल नॉर्मल. इट इज प्रिंसिपल नॉर्मल. n is principal normal. Okay, R1 cross R2 upon mod of R1.
ये होता है प्रिंसिपल नॉर्मल, होता है प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। तो इट विल बी व्हाट, बिकॉज प्रूफ में मुझे जी चाहिए, तो मॉड r1 क्रॉस r2 आई कैन राइट r1 क्रॉस r2 अपॉन अंडर रूट जी, अंडर रूट जी, ये जी निकल के आ जाता है, तो हो जाता है मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2 स्क्वायर इज जी, स्क्वायर हटेंगे तो स्क्वायर रूट जी, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यू वांट टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रूफ को, देखिए अब शो करना है हमें, इट इज r11 r1 r2, so I want it r1 r2 is this, so I want to prove it in terms of r1 r2, so I will write this in terms of ri's. आप लोगों से अटेंडेंस की फिक्र है, स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है, ये सब सर आपका ये काम। लास्ट में सेंड किया करें ना सर, स्क्रीनशॉट जो है। ये सब आपका काउंट हो रहा है, कौन कितने भेज रहा है, कौन क्या मैसेज डाल रहा है। जो 10 नंबर रखे हैं मैंने वो इसी चीज के रखे हैं, कौन क्लास। सर प्लीज इतना बता दीजिए बस सर कि पहले स्क्रीनशॉट सेंड किया करें कि लास्ट में, यार ऑफ कोर्स अटेंडेंस सर बाद ये में बता आएगी दीजिए। यार, अटेंडेंस बाद में आएगी, पहले तो नहीं ले रहा मैं अटेंडेंस यहाँ पे। ओके सर, तो हम क्लास के एंड में ही सेंड किया करें ना। जी, जब क्लास एंड हो रही है तब ओके send सर। कर दो। अभी आप भेज दें, कोई डिस्कनेक्ट होकर चला जाएगा, क्या पता चल रहा है यहाँ 55 में से 20 रह जाएंगे यस सर ऋषि भाई, ओके थैंक यू सर। तो आई वांट टू प्रूव इट इन टर्म्स ऑफ दिस। तो कैसे r11 r12 लाए ये बताओ, चलो एनी आइडिया। I want to prove k is equal to b upon g. This is your formula, b upon g. हमें लाना है ये चीज, कैसे आ सकती है, इसे एक्सपेंड करें b11 को, b11 will be what, r11 dot n, है ना। प्रूफ को अगर आप देखें, I want this in terms of r11 r1, तो वो कब आएगा, when I will expand this in this formula, through this formula. So r11 dot n will be how much, r11 dot r1 cross r2 upon under root g. Okay, so this will become how much, r11 r1, अब ये देखो ये ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया आपका, तो दिस आई कैन राइट r11 r1 r2 अपॉन अंडर रूट जी, ये फर्स्ट टर्म मिल गया आपको b11, सिमिलरली b22, है ना। सर जो ये लिखा है R11 इसमें डॉट ही तो आएगा ना, R11 डॉट R12, या फिर एक साथ ही लिखना है इसको पूरा? आप ये डॉट प्रोडक्ट जिस वन, ये जी जी जी। ये शोइंग। सिमिलरली देखो प्रूफ हमें जो करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम चीजें रख रहे हैं, हमें प्रूफ में जी चाहिए था तो मैंने सब जगह जी रखा, इसको आई कन्वर्टेड टू जी। नाउ इन प्रूफ आई हैव इन न्यूमरेटर आई हैव r1 r2 टर्म, so I am opening this b in this formula and I am expanding this again by this formula. इसमें आप b22 रखेंगे तो आपका सेकंड टर्म मिल जाएगा, b22 will be what by this formula, r22 dot n। अब अगर प्रूफ में n का टर्म सही होता तो मैं n को ऐसे लिख देता, बट आई नीड द प्रूफ इन टर्म्स ऑफ r12, तो n को भी हमने ओपन करा है। नाउ इट विल बिकम r22 dot r1 cos r2 upon under root g. Now this will become triple product, so this I can write r22 r1 r2 upon अंडर रूट जी। ओके, ये आपके सेकंड टर्म आ गया। सिमिलरली होल स्क्वायर है तो b12 स्क्वायर, तो b12 विल बिकम, सिमिलरली b12 विल बिकम r12 dot n, by expanding it will be coming r12 r1 r2 अपॉन अंडर रूट जी। ठीक है, तो इन सब टर्म्स को उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, k इज इक्वल टू बी अपॉन जी, तो यू विल बी गेटिंग जी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट जी आ रहा है 2 बार, ये मल्टीप्लाई में होकर जी बन जाएगा, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। इज इट क्लियर?
जी सर। हाँ, तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, कुछ वैसा नहीं है। ये प्रूफ जैसे अकॉर्डिंग प्रूफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कैलकुलेशन करता है। बस ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। Gaussian curvature is b upon g. B is given by this. B11 you can calculate by this formula, and you can calculate by this formula. ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो कुछ फॉर्मूला। Similarly, one more problem you can show. Next example. See, show that k is equal to 1 upon g square, determinant of r11 dot r22, r1 dot r22, r2 dot r22, determinant है 3 by 3 का, first second third entry, and r11 dot r1, r1 dot r1, r2 dot r1, third row is r11 dot r2, r1 dot r2, r2 dot r2. This minus 1 upon g square, determinant of r12 dot r12, r1 dot r12, r2 dot r12, r12 dot r1, r2 dot r1, r12 dot r2, r1 dot r2, r2 dot r2. ये एक फॉर्मूला करेंगे, सो दैट के इज दिस, है ना। तो ये कैसे आएगा आपको, ये सिंपल, ये जो हमने अभी किया है ना, इसका अगर आप ओपन इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगी, यही टर्म्स आ जाएंगी सारी। ये क्या होता है, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, ये जो निकाला था। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप, ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, इसे एक्सपेंड करोगे तो यही टर्म आ जाएगा। From previous example, by using this formula, triple product formula, A, B, C, D, E, F, ये है जैसे आपका, है ना, यहाँ पे जो ये टर्म लिखा हुआ है A, B, C, D, E, F, जब आप इसे ओपन करेंगे तो इट्स फॉर्मूला इज व्हाट, A डॉट D, B डॉट D, C डॉट D, देन पहले A से तो कर दिया हमने D में, फिर B से, तो B नहीं, A का इंटू करा D, A डॉट D, B डॉट D, C डॉट D, फिर से आप करेंगे नेक्स्ट A डॉट, कितना आ जाएगा ये, E, B डॉट E, C डॉट E, एंड A डॉट F, B डॉट F, C डॉट F। ये फॉर्मूला होता है इफ यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो यहाँ यही फॉर्मूला, इसको जब आप ओपन करेंगे ये चीज रहेगी वेक्टर प्रोडक्ट से बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका एक इसमें और, हाँ, फॉर ऑर्थोगोनल, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, so that k is equal to 1 upon under root g11 g22 del of del u1
1 upon under root G11 del of under root G22 over del U1 plus del U2 of 1 upon under root G22 del of G11 over del of U2। ये शो करना है आपको। तो जहां भी ये गॉसियन कर्वेचर आ रहा है और हमें कुछ सॉल्व करना है, आई एम यूजिंग ऑल द टाइम गॉस फॉर्मूला, दिस A is equal to B upon G, है ना। अब वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी आर यूजिंग दिस टर्म, जैसा प्रॉब्लम है उस टाइप से यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे यू कैन सी यू आर हैविंग द टर्म लाइक दिस, तो आई विल यूज B by G द फॉर्मूला विच आई डिराइव्ड हियर, क्योंकि इसमें आपके पास दिख रहा है यू आर गेटिंग सम G11 G22। ये कब आएगा आपके पास? व्हेन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पर आपके पास गॉस फॉर्मूला जो था कहाँ गया, ये जो हमने प्रूफ किया है ना, इसमें यू आर गेटिंग दिस टर्म्स del U1 U2। इस फॉर्मूले में अगर कुछ हम मैनिपुलेशन करें वी कैन गेट दिस K। तो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था गॉस फॉर्मूला, इसमें आई विल डू सम मैनिपुलेशन। तो व्हाट आई विल डू 1 upon G and B is given to you। तो B हमारा जो गॉस फॉर्मूले से था ये लिख दे रहा हूँ मैं, del U1 del U2 minus half del 2 G11 over del U2 whole square minus half del 2 G22 over del U1 square and minus G LM 1 L 2 M minus 1 2L 1 2M। It was this। ये फॉर्मूला हमने भी जो गॉस फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट स्लाइड में आपको। अब फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स क्या होगा अभी बताओ जरा। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल है व्हाट विल हैपन, बताइए कुछ इससे ऑब्जर्वेशन, इससे कुछ आपके पास फाइंडिंग होगी। इस फॉर्मूले में क्या हो सकता है, क्या होता है कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्थोगोनल इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कोएफिशिएंट्स। बताइए कोई भी, तो यहाँ रेस्पॉन्स देगा उसी के मार्क्स मिलेंगे 10 में से अच्छे। खाली आप ये इनवेरिएंट होंगे। इनवेरिएंट होंगे उससे क्या होगा, इनवेरिएंट से क्या फायदा होगा, इनवेरिएंट कहाँ से होगा, इनवेरिएंट का क्या मतलब। बताइए अगर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या होगा। जिसने जवाब दिया उसे 10 नंबर में से हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, जो 10 नंबर मैंने सेव करके रखे हैं आपके। बाकी अटेंडेंस भेजने से जो आप भेज रहे हो इससे कोई इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ इफ कोऑर्डिनेट्स आर सही ऑर्थोगोनल, सभी राइट एंगल पर मिलेंगे। G120 हैं राइट एंगल पर मिलेंगे ये। नहीं सर कौन, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। G120 किसने कहा था अभी, सर मैंने, नाम बताओ ना यार, मैंने कोई बेटे सामने बैठे सर हो। मोहम्मद आरिश खान, मोहम्मद आरिश खान। 19 MMV। हाँ सही, मोहम्मद आरिश खान का जवाब सही था। G12 होता है अगर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमने कराया था। G12 इज सर 0। राइट एंगल पर मिलते हैं, ये भी तो सेम ही बात हो गई ना सर। क्या राइट एंगल पे मिलते हैं, ये तो यार ऑर्थोगोनल से दिख ही रहा है। ऑर्थोगोनल का मतलब तो यही कि कोई ना कोई चीज राइट एंगल पे मिल रही होगी, उससे क्या मिलेगा हमें, जो इस फॉर्मूले में आसानी हो जाए कैलकुलेशन करने में। ऑर्थोगोनल का मतलब तो यही है यार। किसी से पूछो कि आप लाइन क्या है, वो तो कोई सड़क पे रिक्शा वाला बता देगा लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ से सीधे जा रही लाइन है। कंसेप्ट क्या है लाइन का,
ठीक है, Yeah. G12 इज 0 है ना, ये इंफॉर्मेशन एक हमने Yes, sir. निकाला फर्स्ट फंडामेंटल को। ठीक, सर क्लास का लिंक आ गया ना दूसरी। अच्छा अभी तो टाइम है, 10 तक क्लास होती है आपकी यार, ये पता नहीं है फ्राइडे की क्लास 10 तक है, 10 तक आप इसी क्लास के हैं। 10:05 तक होती है सर। नहीं, 10 तक होती है। नेक्स्ट क्लास 10:15 से 11 स्टार्ट होगी, आपका 5 मिनट का ब्रेक होता है, आपको आज तक यही नहीं पता। आपकी क्लास फ्राइडे में 40 मिनट्स की है, 5 मिनट्स ब्रेक होता है, 8 to 8:40 फर्स्ट क्लास, 5 मिनट्स गैप। दूसरी क्लास होती है आपकी स्टार्ट 8:45 से 9:25, तीसरी क्लास जी 9। सर, बिल्कुल सही कहा। क्या यार तुम लोग तो घर जाके बिल्कुल ही बेकार हो गए। 10:15 का टाइम स्टार्ट है नेक्स्ट क्लास का, 10 तक ये क्लास है, 5 मिनट का टाइम मिलता है आपको मूव करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। चलो तो फिर तो G12 इज 0। तो अगर G12 0 है तो हमारे इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे जहां जहां 12 आ रहा है ये टर्म 0 हो जाएंगे। एक तो ये टर्म 12 0 होगा, और इस फॉर्मूले में जो आपके पास रन कर रहा है ना ये L और M, तो यहाँ पर हम L की चॉइस होती है कि L को मैं 1 लूंगा फिर सॉल्व करूंगा, फिर 2 लूंगा सॉल्व करूंगा। देखिए इधर, so what will be getting here, so I will put in this formula. So firstly I want to find this, अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है I will have to calculate this term and this term, है ना, ये निकालना है। देखिए so it will become, तो यहाँ जब G12 0 है तो k will become B अपॉन G। अब देखो यहाँ पे हमें G11 G22 चाहिए, तो मैं G की वैल्यू भी रख दे रहा हूँ। ओके, तो ये कितना बन गया, 1 अपॉन G क्या होता है, G11 G22 minus G12 square, but G12 is 0 so you have only this in the denominator। आगे चलिए, इस फॉर्मूले को खोल रहा हूँ मैं। नाउ del 2 G12 it is 0 है ना, इसको 0 कर दिया हमने, this is 0 minus del 2 G11 over twice del U2 whole square। नेक्स्ट टर्म इज माइनस, इसमें भी G22 आ रहा है तो यू कैन राइट दिस टर्म, so it is how much 1/2 del G22 over del U1 whole square। ये तो आपका ये टर्म हो गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट टर्म होगा। नाउ माइनस GLM। अब देखो GLM में क्या होगा, जैसे अब ये LM को हम यहाँ पे रन कराएंगे 1 2, तो G12 तो 0 है, तो when L1 के साथ M की 2 चॉइस होगी M1 M2, तो G12 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास सिमिलर इंडेक्सेस आएंगे। when both LM 1 1 तो G11 लूंगा मैं, है ना, तो G11 मीन्स L1 M1, तो हाउ मच इट विल बी 1 1 1 2 2 1 माइनस 1 1 और 1 2 1 2 है ना। अब मैं जब अब LM के साथ आपके पास यहाँ पे 4 चॉइस थी, लेकिन सिर्फ G11 आएगा और क्या आएगा G22, क्योंकि 2 1 और 1 2 तो 0 हो गए। एक टर्म और आएगा माइनस G22। अब ये कितना आ जाएगा 1 1 2 2 2 2 माइनस 1